स्टोरी डिफरेंट है। जैसे सर्विक्स के अंदर अगर वायरल इन्फेक्शन बाय एचपीवी होगा तो वो स्क्विमस मेटाप्लेजिया करेगा, डिस्प्लेजिया करेगा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा डेवलप करेगा। इसी तरह स्टमक के अंदर, so this is, you see that this is squamous epithelium which is metaplastic first, and then this is this. All know that the cells, they lose cohesiveness, they have mitosis, they have pleomorphism, their membranes are irregular, their nucleoli are prominent, and the chromatin is dispersed, and prominent nucleoli, and the mitosis are till the surface. So that explains carcinoma in situ. In stomach, what happens that first of all there is chronic gastritis or कौन सा पे स्लाइड नजर आ रही है जिसमें ब्लैक 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 नॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज एच पाइलोराई। तो ये एच पाइलोराई जो है वो करता है गेस्ट्राइटिस, एंड देन इट कॉजेज एट्रोफी, देन इट कॉजेज मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया एंड एडेनोकार्सिनोमा। तो एक बेसिक थ्योरी जो है वो सेम ही है कि सबसे पहले एट्रोफी हो रही है, फिर मेटाप्लेजिया हो रहा है, और फिर डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा हो रहा है। कहाँ पे कहानी चेंज होती है, जहाँ पे जो इटियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। सो इटियोलॉजी द सेम, पैथोफिजियोलॉजी इज सेम, ठीक है। तो you all must be knowing what is etiology and what is pathophysiology. Etiology is defined as those agents, they can be viruses, they can be bacteria, it can be some chemicals, or any agent which can harm the cell, it becomes an etiological agent, और वो फिर इंजरी करके तो further process को proceed करता है। So in stomach, the main process which can happen is because of this H. pylori infection that leads to chronic gastritis, that leads to mucosal atrophy, that leads to intestinal metaplasia, dysplasia, and then adenocarcinoma. So the course, the further course is like this. In esophagus, because there is GERD, there is gastroesophageal reflux disorder. Uh, when more acid is produced in the stomach, it regurgitates upwards to the lower end of esophagus. The lining of lower end of esophagus is stratified squamous epithelium. So again, there is a process of metaplasia, which is called intestinal metaplasia, and the other name you call it as Barrett's esophagus, and that will lead to adenocarcinoma. ठीक है? So different situations में different conditions हैं जो कि metaplasia कर रही हैं. Bronchus के अंदर smoking is the etiological agent which causes squamous metaplasia, which leads to dysplasia and squamous cell carcinoma. So these are the 4 examples of precancerous condition which you have to remember. And there is another condition which is xeroderma pigmentosum, that is in skin, which leads to squamous cell carcinoma. Now the main topic for today is develop dysplasia, they develop metaplasia, or metaplasia can be because of some environmental agent, but if there is some genetic change in the background, so then that will lead to cancer. So cancer, they are caused by genetic mutations, they can be sporadic and they can be inherited. So what is the concept of sporadic and inherited? Inherited is like that कि एक बच्चा न्यू बॉर्न पैदा हुआ है तो उसके जीन्स में तभी प्रॉब्लम है जब वो पैदा हो गया। तो आपको पता है कि 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, उनके 2 एलील्स होते हैं। तो अगर दोनों एलील्स जो हैं वो खराब हो जाएं तो दैट डिजीज कैन हैपन। और अगर एक एलील खराब हो और दूसरा एलील खराब ना हो तो बंदा जो पेशेंट है वो कैरियर हो सकता है लेकिन उसको डिजीज नहीं हो सकती। तो डिजीज को टिपिकली दोनों क्रोमोसोम्स का खराब होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अगर ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस खराब हो तो दैट विल लीड टू इनहेरिटेड
genetic disorder. It can be a cancer, it can be anything. So this is the base of this. Okay. लेकिन स्पोरेडिक में ये होता है कि एक जीन जो होता है वो खराब होता है, जैसे बच्चा एजेंट्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो इट मे टेक 10 years, 15 years और 20 years और मे बी 30 years, तो देन इट बिकम्स स्पोरेडिक। यानी कि स्पोरेडिक का मतलब है कि दोनों एलील्स, डिजीज तब होगी या कैंसर तब होगा जब दोनों एलील्स खराब होंगे। दोनों एलील्स जो है वो पैदा होते ही खराब हो या वो वक्फे से खराब हो, यानी कि एक पहले खराब हो और एक जो है वो बाद में जाके खराब हो। तो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं स्पोरेडिक में कि एक जीन्स बाय बर्थ खराब है और दूसरा जो एलील है, वो कोई तकरीबन 15 साल बाद खराब हो जाता है। या दो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक एलील जो है वो एट द एज ऑफ 10 years खराब हुआ है या 15 years खराब हुआ है या 20 years खराब हुआ है, और दूसरा एलील जो है वो जाके 40 years पे या 60 years पे खराब हुआ है। तो डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस तब करेगी जब दोनों एलील्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस में ये है कि क्रोमोसोम्स के दो एलील्स हैं, दोनों एलील्स का खराब होना जरूरी है ताकि डिजीज एक्सप्रेस हो सके। ठीक है। अच्छा, there are some syndromes which are associated with inherited। इसमें ये है कि basically these are autosomal dominant, यानी कि अगर इनका ये प्रॉब्लम है ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव का, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक जीन के अंदर प्रॉब्लम है तो इट डजंट नीड कि दूसरा एलील भी खराब हो, the disease will express and disease will be transmitted to the next born। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर लेट सपोज अगर आप वो मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई करें तो एवरी पर्सन इन द वो जो 2 से 4 बनते हैं तो उनमें एवरी पर्सन विल बी हैविंग दिस डिजीज। लेकिन जो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं उसके अंदर 50% जो है ना वो डिजीज डेवलप होती है उनके अंदर। सो सिंड्रोम्स कौन से एसोसिएटेड हैं? व्हाट इज फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम एंड देन इज रेटिनोब्लास्टोमा। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जब पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कॉज कैंसर प्रोडक्शन। जैसे ग्रोथ, 4 तरह के जीन्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ग्रोथ ज्यादा हो जाए, ग्रोथ ज्यादा करने वाले जीन्स एबनॉर्मल हो जाए तो ऑब्वियसली ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी कि जितना हार्मोन मिल रहा था एक चीज को ग्रो करने के लिए अब उससे डबल मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब ग्रोथ करने वाला हार्मोन ही डबल होगा तो ऑब्वियसली फिर ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो ग्रोथ हार्मोन ने ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं ग्रोथ करनी ना, उसने किसी सेल पे जाके एक्ट करना है। तो सेल के ऊपर एक्ट करने ज्यादा हो जाए, यानी कि पहले सिर्फ 2 रिसेप्टर्स अवेलेबल थे, 2 साइट्स अवेलेबल थी, तो हार्मोन सिर्फ 2 साइट्स पर एक्ट कर सकता था ना। तो अगर 4 साइट्स अवेलेबल हो जाए या 6 साइट्स अवेलेबल हो जाए, यानी कि रिसेप्टर्स इंक्रीज कर जाए, तो फिर ऑब्वियसली फिर भी ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि अब चांस ज्यादा है ग्रोथ हार्मोन के या किसी भी फैक्टर के जो कि ग्रोथ कर रहा है वो उसको उसको अपना एक्शन शो करने के। हार्मोन ज्यादा हो रहा है और या ग्रोथ रिसेप्टर ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि लेट सपोज एक सेल जो है वो डिवाइड होने लगा है और डिवाइड होते हुए उसको प्रॉब्लम हो गई है उसमें और कोई उसमें कोई खराबी आ गई है, क्योंकि आपको पता है कि देर आर सर्टेन जीन्स जो कि सेल साइकिल को चेक करते हैं। दैट इज P53 इज द मेन जीन and this is also called as guardian of genome।
यानी कि वो गार्ड है एक सेल का, तो वो हर वक्त चेक करता रहता है कि सेल जो है उसके फंक्शंस ठीक हैं, उसका जेनेटिक मेकअप ठीक है, उसकी डिवीजन ठीक है। तो P53 जो है ना वो उसका काम ये है। अब क्या है कि P53 जो है वो दो लेवल्स के ऊपर सेल को चेक करता है। एक वो चेक करता है जब सेल जी नॉट होती है रेस्टिंग फेज, जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो जब वो जीवन के अंदर जा आती है एस फेज, तो G1 और S के दरमियान जो ट्रांजिशन है ना उसको चेक करता है P53 के, जो जेनेटिक मटेरियल बनने जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक पॉइंट होता है जब सेल डिवाइड होने लगता है, यानी कि S से वो G2 में जाता है और फिर वो M फेज में जाता है। तो G2 टू M जो है ना वो एक ट्रांजिशन है, और G1 टू S एक ट्रांजिशन है। तो इन दो लेवल्स के ऊपर चेकिंग होती है सेल की कि उसकी वो प्रॉपर डिवीजन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर लेट सपोज P53 जो है उसने चेक किया है सेल को कि जो जेनेटिक मटेरियल डबल होने के लिए जा रहा है किसी सेल का वो ठीक नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि वो डीएनए रिपेयर जीन्स को मैसेज भेजेगा, कहेगा कि जी डीएनए रिपेयर जीन्स कौन से हैं, BRCA1 है, BRCA2 है, बरका जीन्स होते हैं, ठीक है, और भी जीन्स BRCA2, ठीक है। तो अच्छा, अब ये है कि जी क्या होता है कि जी P53 ने चेक कर लिया, P53 के अंडर ये सारे जीन्स हैं, BRCA1 भी, BRCA2 और ये जीन सारे उसके अंडर होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जी उसको कहते हैं कि जी रिपेयर करो, खराबी हो गई है ना तो रिपेयर करो। BRCA1 और BRCA2 डीएनए रिपेयर जीन्स वो रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं, रिपेयर करते हैं, और तो सेल नॉर्मल डिवाइड करने लग पड़ता है। लेकिन अगर वो BRCA1 और BRCA2 या डीएनए रिपेयर जीन्स ही खराब हो जाए, ठीक है ना, तो रिपेयर नहीं कर सकेंगे ना, वो खराबी हो गई। P53 ठीक है, P53 नहीं खराब हुआ अभी, P53 ठीक है, उसने जाके कह दिया कि जी चेक कर लो भी ये खराबी हो रही है, डीएनए रिपेयर जीन्स ने ठीक कर दिया। अब अगर डीएनए रिपेयर जीन्स ठीक नहीं है तो वो बेचारे कैसे करेंगे सेल को ठीक। तो इसलिए वो जो म्यूटेशन या जो कोई चेंज आई है वो आगे पास ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल फेनोमेना कि कैसे ये एक दूसरे को चेक करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन्स के रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाए, डीएनए रिपेयर जीन्स खराब हो जाए। अब क्या हुआ कि फिर भी लास्ट चांस जो है ना वो सेल अवेल करता है। ऐसे नहीं होता कि जी एक डीएनए सेल बैठ जाएगा कि जी खराब सेल जो है वो हो रहा है तो भी जी होने दो इसको, ऐसे नहीं होता। होता यूं है कि फिर एपोप्टोटिक जीन्स को P53 ऑर्डर करता है कि भाई ये खराबी ठीक नहीं हुई, इस सेल को खत्म कर दो। तो एपोप्टोटिक जीन्स एक्शन में आ जाते हैं और वो सेल को खत्म कर देते हैं। नॉर्मल इंसान के अंदर ऐसे होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह से, तो दे दिस फिनोमेना इज हैपनिंग इन देयर बॉडी कि whenever there is something wrong, the body itself corrects it, cells itself corrects it with the help of genes, and which genes helps is P53, and P53 खुद भी करता है काम, और P53 दूसरे जीन्स को भी करता है कि वो काम करेगा, ठीक है। तो अगर डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हो, so it will be autosomal recessive, and the conditions which are associated with this defective DNA repair are xeroderma pigmentosum and ataxia telangiectasia. So आपको ये दो चीजें जो है वो याद करनी है। अच्छा, what is the importance of familial cancers, यानी कि जो families के अंदर cancers ट्रैवल करते हैं उनकी क्या वो है कि दे कैन बी, मैंने आपको बताया कि दोनों जीन्स जो है वो खराब होंगे। दोनों जीन्स अगर बाय बर्थ खराब होंगे तो क्या होगा कि वो जो डिजीज है वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, डिजीज जल्दी आ जाएगी, ठीक है।
और जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादा चांस होगा कि रिलेटिव्स के अंदर, ज्यादा चांस होगा कि बहन भाइयों के अंदर ये डिजीज हो. So two or more first degree relatives with the same cancer can be there. Then cancer will be increased in siblings as well. Multiple and bilateral tumors can happen, and there are multiple low penetrance genes. यानी कि low penetrance genes के वो genes होते हैं जो कि slowly body के अंदर grow करते रहते हैं, लेकिन वो multiple होते हैं. तो familial cancers में ये एक सारी characteristics है. So if we summarize this, that what is the molecular basis of cancer? That non-lethal genetic, इंसान को पता भी नहीं होगा कि उसकी बॉडी के अंदर जीन्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, और वो नॉर्मल होगा, उसके सारे फंक्शंस नॉर्मल होंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जेनेटिक डैमेज उसके अंदर हो चुका होगा. फिर उसके बाद क्या होगा कि एक दफा डैमेज हो गया, नाउ दिस विल बी क्लोनली एक्सपैंडेड. क्लोनली एक्सपैंडेड का मतलब ये है कि जीन्स की जो म्यूटेशंस हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी. So if we summarize this, so I told you that the genes which cause cancer, they are called as oncogenes. Okay, so they can be growth promoting genes, जिनको हम प्रोटोन्कोजीन्स कहते हैं ये, और then growth factor receptors, transcription factors, and then cell cycle regulators. ठीक है, ये आपको पॉइंट्स में समझ नहीं आएगा. अब ये एक है थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसके अंदर स्क्रीन भी आ जाती है. लेट मी सी दैट. पता नहीं बोर्ड भी आ जाता होता था, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा इसमें. ये हाउस पोस्ट में आता है, मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहिए. इसकी एक कहानी आप सुन लें, जो सेल के अंदर बेसिकली होता है. क्या होता है? जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन विजुअलाइज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ग्रोथ हार्मोन आ रहा है और सेल पड़ा हुआ है, और सेल के ऊपर आके चिपक गया रिसेप्टर्स के थ्रू. अब वो क्या करता है कि मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंज करता है, और मेम्ब्रेन से कुछ सिग्नल्स जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में जाते हैं, और वहां से सिग्नल्स जो है वो न्यूक्लियस तक पहुंच एक्ट करता है, और फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उस न्यूक्लियस में जो एक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं. तो दिस इज ऑल फिनोमेना कि ग्रोथ फैक्टर आया, उसने रिसेप्टर को अटैच किया, उसने प्रोटीन्स रिलीज की इन द साइटोप्लाज्म, वो प्रोटीन्स जाके न्यूक्लियस पे जाके अटैच की, और उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट किया, और सेल डिवाइड होना शुरू हो गया. लेकिन उस सेल को रेगुलेट करने के लिए भी, so this is the whole summary of oncogenes. So
I told you that there are four kinds of genes which can cause cancer: proto-oncogenes, tumor suppressor genes, DNA repair genes, and then चार तरह के जीन्स हैं जो कि एक्ट करते हैं. सो होता क्या है कि जी मैंने आपको बताया कि दो चार तरह की जीन्स है. So proto-oncogenes, if there is mutation, then they develop into oncogenes, release protein kinases. Okay. Tumor suppressor genes, when there is loss of both alleles, it will it will not act on protein kinases, and it will not stop the cyclins, so it will be going on, the growth will be going on. तो basically क्या होता है कि अगर proto-oncogenes अपना काम normally कर रहे हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स खराब हो चुके हैं, T1 से S में चला जाएगा. So this is how the process acts. First of all, there is a normal cell, then there is carcinogen induced change that leads to formation of a tumor cell, and this tumor cell then proliferates. It requires growth factors, and then it becomes first of all non-invasive, and then invasive, and then metastatic. So these are 7 factors which help basically in forming a tumor. Okay. So एक जो malignant cell है वो कौन से 7 रूल्स ब्रेक करेगा? ठीक है. पहला रूल ये है कि जी वो तो न्यूप्लास्टिक डिफरेंशिएशन हो गई है उसके अंदर. दूसरा रूल ये है कि वो ग्रोथ सिग्नल्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी कि वो ग्रो किए जा रहे हैं. जैसे न्यूप्लेजिया की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि न्यूप्लास्टिक ग्रोथ इज दैट ग्रोथ व्हिच कीप्स ऑन ग्रोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिमुलेशन. अगर स्टिमुलेशन नहीं भी होगी ना तो वो ग्रो करता चला जाएगा. ठीक है. So neoplastic cell differentiates, a cell differentiates into a neoplastic cell. It has self-sufficiency in growth signals. It has insensitivity to anti-growth signals, यानी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को कोई एक्ट नहीं कर रहा. Then there is telomerase expression. Telomerase क्या होते हैं? टेलोमेरेस क्या होते हैं कि छोटे से फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि एंड ऑफ सेल पे लगे होते हैं. तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हिच बेसिकली आर टेलिंग दैट द सेल इज डाइंग. जब टेलोमेरेस के वो छोटे फ्रैगमेंट्स कुछ हर थोड़े अरसे के बाद वो पीछे से गिरते जाते हैं. तो जब वो टेलोमेर्स खत्म हो जाते हैं तो सेल की डेथ हो जाती है. सेल एजिंग का फिनोमेना भी ऐसे ही होता है कि टेलोमेरेस जो है वो खत्म होते चले जाते हैं और सेल जो है वो एज होता चला जाता है. ठीक है. तो इनमें क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं जो कि ये और ये जो है इनके अंदर टेलोमेरेस एक्सप्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो एक सेल जो है दिस इज न्यूप्लास्टिक, then it has self-sufficiency in growth signals. It does not respond to any anti-growth signals. It has more telomerase expression. Then it invades and then it metastasizes. It sustains its blood supply. तो इसकी वजह से वो ग्रो करता चला जाएगा. It has limitless replicative potential, यानी कि वो बार बार रेप्लिकेट करेगा. It has कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो नहीं कर सकता, और वो एपोप्टोसिस को भी एवेट कर देगा, यानी कि उसकी डेथ भी नहीं होगी.
This is the first thing which I wanted to draw, but luckily it's here. Uh, और ये ग्रोथ फैक्टर आया है और उसके अंदर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, ये एक ऐसे, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर अपने रिसेप्टर पर जाके लगा है और उसने एक्टिवेट किया है रैस को। इनएक्टिव रैस इज कन्वर्टेड टू एक्टिव रैस, ठीक है। इसके बाद इट विल एक्टिवेट रैफ, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पाथवे एज रैस रैफ मैप काइनेज पाथवे, रैस रैफ मैप काइनेज पाथवे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फैक्टर आता है, वो रिसेप्टर को अटैच करता है, वो अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। सो दिस रैस इज बेसिकली अ प्रोटीन व्हिच इज released and it traverses the cytoplasm, then it activates the map, and then it activates the transcription factors in the cell nucleus, and then it causes the cell, which happens in this. So growth factors कौन कौन से हो सकते हैं? Platelet derived growth factors, transforming growth factors, and these growth factors are overexpressed or increased in different type of tumors. Like platelet derived growth factor is overexpressed in astrocytoma, and transforming growth factor is overexpressed in sarcomas. Different growth factors. वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इट इज ओवर एक्सप्रेस्ड इन एस्ट्रोसाइटोमा, यानी कि एस्ट्रोसाइटोमा में एक ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा होगा और उसका रिसेप्टर भी ज्यादा होगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड कार्सिनोमा ऑफ लंग। Factor receptor kit, it has point mutated in gastrointestinal stromal tumor. So these are different tumors in which different things are happening. In some tumors growth factors are being increased, and in some tumors the receptors are being increased, and in some tumors both. Then there are different proteins which are traversing the cytoplasm, and these proteins are RAS protein, जो कि मैंने जिसकी पिक्चर दिखाई आपको पहले, RAS RAF MAP kinase pathway, and the second protein is the ABL protein, ABL BCR. So RAS is the basically commonly mutated oncogene. It is one of the family of the small GTP binding proteins. Normal activation is very transient. What happens that when this is activated, RAS is activated, so GTP GDP is replaced by GTP, ठीक है। so डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो GTP है वो वापस GDP में बाय GTPase एंजाइम्स हो जाती है, ठीक है, ठीक है। वापस से चला, ट्रांजिएंट है ना, पहले एक्टिवेट होगा और फिर एक्टिव फॉर्म, एंड GTP इज एक्टिव फॉर्म। तो जब म्यूटेशंस होती हैं, जब खराबी होती है, तो कहाँ पे खराबी होती है? पॉइंट म्यूटेशंस इंटरफेयर विद हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वापस जो हाइड्रोलिसिस हो रही थी ना, कि GTP की हाइड्रोलिसिस हो रही थी बाय GTPase, तो जब ट्यूमर डेवलप करता है तो क्या होता है कि और एक्टिवेटेड स्टेट में ट्रैप हो जाता है। तो जो सिग्नल है वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल न्यूक्लियस को मिलता रहता है, ठीक है। ये वाला सिग्नल जो है, जैसे GDP से वो GTP में चेंज हुआ था, तो उसके बाद फिर वो उसने सिग्नल्स भेजने शुरू किए थे। बेसिकली क्या होता है कि म्यूटेशन जब होती है RAS की, तो ये GTP की फॉर्म में रह जाता है,
ये जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि जीडीपी इज इनएक्टिव। बेसिकली क्या होता है कि जी एक्टिव रहता है तो वो ग्रोथ भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है, और सेल्स ग्रो करते जाते हैं, करते जाते हैं। This is another example in which the chromosome 9, which has a gene as ABL, and there is another chromosome 22, which has a gene as BCR. So ABL, BCR. So what happens that there is chromosomal break. So chromosomal और इधर से भी chromosome BCR टूटता है, उधर से ABL टूटता है, और वो एक नया क्रोमोसोम बना देते हैं, which is on chromosome 22, which is BCR-ABL. So this is Philadelphia chromosome. So what happens that BCR-ABL hybrid protein जब बनती है, so it has more uncontrolled higher tyrosine kinase activity, ठीक है? So it will of the damaged cells. तो डैमेज सेल्स की जब एपोप्टोसिस नहीं होगी तो वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कर देगा, विच इज अ malignant ट्यूमर ऑफ lymphoid cells. अच्छा जी, नाउ देयर आर डिफरेंट ट्यूमर्स जिनके अंदर म्यूटेशंस हो रही हैं ग्रास की, ठीक है? जैसे, और ग्रास के तीन तरह के रैस होते हैं, के रैस, एच रैस एंड एन रैस। तो कोलन, पैंक्रियाज एंड लंग ट्यूमर्स में केरास इन्वॉल्व है, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन हो रही है। ब्लैडर एंड किडनी ट्यूमर्स में एचरैस है, which is again having point mutation, and melanoma has NRAS which has point mutation, while CML जो कि मैंने पहले बताया it has ABL translocation। क्या देखो, ये ट्रांसलोकेट हो रहा है, ABL यहाँ से निकला, BCR यहाँ से निकला, और इन्होंने एक हाइब्रिड चेंज्ड क्रोमोसोम बना दिया जिसे BCR ल्यूकीमिया में होता है। So this is, I want you to draw that the cell cycle, the cell is in G0 phase, it goes to and G1 phase, and this is S phase, G2 phase, and then M phase. So G1 to S, P53 will check, this is a first checkpoint, and G2 to M, there is another checkpoint. Then I told you कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम हो गई, उसके रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में प्रॉब्लम हो गई, उसकी हमने दो एग्जांपल्स दे दी, रैस और BCR-ABL। और उसके बाद अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके अंदर सेल्स ने डिवाइड होना है, तो जो कि जिसमें मिक इज द इम्पोर्टेंट वन। सो व्हाट हैपेंस दैट कि ये एनमिक है जो कि न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जी छोटा सा न्यूक्लियस है, छोटा सा एरिया है क्रोमोसोम के अंदर, लेकिन वो इफेक्ट इतना एरिया का प्रोड्यूस करता है। सो देयर इज परसिस्टेंट एक्सप्रेशन, देयर इज ओवर एक्सप्रेशन which leads to sustained proliferation. Again, these MICs are divided into C and NL, C-MIC, N-MIC, and L-MIC. In different tumors, they are amplified, they are translocated. In C Burkitt's lymphoma, 8-14 chromosome में translocation होती है, N-MIC में neuroblastoma में amplification होती है, और L-MIC small cell carcinoma of lung में amplification होती है. So you have to memorize these tumors and their genes. Then there are cell cycle regulators. Obviously cells तो चल रहा है, उनको regulate करने के लिए कुछ factors होते हैं जो कि activate हो जाते हैं, ठीक है? Pair sequentially and they bind to various CDKs, और उसके बाद ये this cyclin and CDK complex they drive the cell through the cell cycles, ठीक है? तो CDKs बेसिकली ये एक ब्रेक लगा रहे होते हैं सेल के ऊपर, जो मैंने कहा ना P53 कंट्रोल कर रहा होता है, तो P53 जो होता है वो इन CDKs के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस इनको कहते हैं, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, ओके? सो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस हैं, CDK4, CDK6, CDK2। तो ये कौन से जीन्स के थ्रू जो है वो एक्ट करेगा?
ये सारे भाई हैं P53 के, P21, P27, P57, ये सारे भाई हैं इसके P53 के। और फिर आरबी जीन, आरबी जीन इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसने सेल को रोकना है, जिसने सेल को प्रोलिफरेट होने से रोकना है। साइक्लिन डी खराब होती है मेंटल सेल लिम्फोमा में, साइक्लिन ई खराब होती है कार्सिनोमा ब्रेस्ट में, CDK4 खराब होते हैं एस्ट्रोसाइटोमा मेलानोमा में, एंड CDK इनहिबिटर्स जो है वो खराब होते हैं कार्सिनोमा पैंक्रियास में। सो दिस इज द होल थिंग कि कोई भी डैमेजिंग एजेंट आया, वायरस हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, वो नॉर्मल सेल के ऊपर आएंगे। नॉर्मल सेल DNA डैमेज हो गया, फेलियर नहीं हुआ रिपेयर का, ठीक है, तो म्यूटेशंस कंटिन्यू कर रही, उन्होंने प्रोटॉन को जीन्स को एक्टिवेट किया, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनएक्टिव किया, रेगुलेट करते हैं जो एपोप्टोटिक जीन्स को अल्टर किया, और उसके बाद एपोप्टोसिस कम हो गई, सेल प्रोलिफरेशन अनरेगुलेटेड हो गई, एक्सपेंशन हो गई, फिर ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो गई, इम्यूनिटी भी खत्म हो गई बॉडी की, और म्यूटेशंस आ गई, ट्यूमर प्रोग्रेस करने लग पड़ा, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म बन गया और इन्वेजन कर ली और उसने मेटास्टेसिस कर ली। सो यू सी दैट देयर आर ऑल द फैक्टर्स, दे वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे जाके काम करते हैं और फिर करते हैं। ओके, नाउ वी कम टू ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। पहले हमने प्रोटॉन को जीन्स की बात की, प्रोटॉन को जीन्स 4 तरह के होते हैं, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स एंड देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो हैं जो कि बेसिकली सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहे हैं, जो कि P53 जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जब लॉस होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का, तो देयर विल बी अनकंट्रोल्ड cell division. So two-hit hypothesis, which was proposed in 1974 for to study the gene of the RB gene and for retinoblastoma. So in what happens that in this case the two hits are there and they will cause retinoblastoma. Hits जो हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत यंग एज में हो जाए या कुछ So this is how it has two forms, familial form and sporadic form. Familial form में क्या होगा कि दोनों जीन्स जो होंगे वो पहले से ही खराब हो जाएंगे, और स्पोरेडिक में होगा कि वो थोड़े अरसे के बाद जाके खराब होगा। कि देखो पहले ये म्यूटेटेड जीन जो था वो चलता आया, तो ये नॉर्मली ग्रो कर रहा था, एक म्यूटेशन इस साइड पर हुई और फिर थोड़ी दूसरी म्यूटेशन दूसरी इधर हुई। तो यहाँ पे ये है कि फेमिलियल फॉर्म में पहली म्यूटेशन तो ऑटोमेटिकली पहले से हुई हुई थी, लेकिन ये म्यूटेंट था, ये जो रेड वाला ये म्यूटेंट आरबी जीन था, लेकिन जो दूसरी म्यूटेशन है तो बाद में जाके हुई, तो ये रेटिनल सेल्स के अंदर पहली म्यूटेशन जो थी वो सोमैटिक सेल्स ऑफ द पेरेंट्स के अंदर, यानी कि पेरेंट्स में थी और वहीं से ही वो बच्चों में ट्रांसफर हुई, ठीक है, जर्म सेल्स के अंदर आ गई ना। और उसके बाद फिर जो सेकंड म्यूटेशन है वो रेटिनल सेल्स के अंदर हुई, तो लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी दोनों म्यूटेशंस हो चुकी हुई थी, तो इसलिए उसको रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, ठीक है। तो इसमें यह है कि जी दोनों म्यूटेशंस जो हैं वो पहले नहीं है, पहले नॉर्मल है, लेकिन so familial and sporadic, familial is 40%, sporadic is 60%. Familial inherits one mutated copy and sporadic has normal alleles to begin with, जैसे इधर मैंने बताया कि बिल्कुल normal alleles हैं इधर। Familial predisposition follows autosomal dominant inheritance pattern
It is early in life and it causes bilateral genes. While sporadic alleles are lost by somatic mutations, they later in life and unilateral genes. So familial, they can have germline mutations and somatic mutations, and but sporadic you see that this is a normal cell, and then there is a DNA damage by P53. It then it causes a PT1 to activate, which causes the cell cycle arrest to activate GAD45, which is the DNA repair genes, and it causes successful repair. And if repair does not happen, then the PAP53 orders backs to cause apoptosis. So the cell which is abnormal. Or what will happen in tumors? P53 is abnormal, या उसका लॉस हो गया या वो है ही खराब, तो कोई सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगा, कोई रिपेयर नहीं होगी, तो इस है कि P53 नॉर्मल है, डीएनए डैमेज हुआ है, अब P53 जो है वो एक्टिवेट हो गया, लेकिन वो बाकी सेल्स को जो है होगा कि सेल्स जो होगा वो या तो उसकी डेथ हो जाएगी या वो जो है वो स्लो हो जाएगा या वो सो जाएगा और वो क्वेसेंट फेज में चला जाएगा. This is the APC beta catenin pathway. तो बेसिकली इसमें होता ये है कि जी विंड pathway. This is also a tumor suppressor gene. Normally क्या होता है कि जो APC और बीटा कैटेनिन जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और ये इसलिए प्रोलिफरेशन नहीं होती क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकते. जब इनमें म्यूटेशन होती है तो एपीसी बीटा कैटेनिन के साथ जुड़ नहीं सकता. ठीक है, तो बीटा कैटेनिन जो है वो रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी. जब बीटा कैटेनिन रिलीज हो जाएगा एपीसी से, तो बीटा कैटेनिन जाके स्टिमुलेट करेगा न्यूक्लियस में और वहां जाके वो ग्रोथ कराएगा, तो प्रोलिफरेशन होगी. अब बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर जब होता है तो एपीसी खराब हो गया, क्रॉस लगा हुआ है ना एपीसी के ऊपर, तो बीटा कैटेनिन को कोई स्टॉप करने वाला नहीं है, कोई उसको बांध के रखने वाला नहीं है, तो बीटा कैटेनिन विल स्टार्ट proliferating and it will this is a so these are carcinogenic agents which can cause cancer: viruses, alcohol, radiation, diet, tobacco, sunlight. Then there are these are chemical carcinogens. So chemical carcinogens दो तरीके से एक्ट करते हैं, या तो वो इनिशिएट करते हैं, ठीक है, और या वो प्रोमोट करते हैं. So initiators, they are permanent, they cause irreversible DNA damage, and they are not capable of causing tumor alone. Promoters, इनके इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं, और लेकिन ये ट्यूमर फॉर्मेशन में अकेले नहीं कर सकते. तो केमिकल कार्सिनोजेंस, इट हैज टू कंपोनेंट्स. इनिशिएटर्स जो कि इनिशिएट करें, जैसे दिस इज द कि उन्होंने कोई स्टडी की थी, इसके अंदर उन्होंने किया कि जी इनिशिएटर्स, अगर खाली इनिशिएटर्स जो हैं वो होंगे उनको दिए तो उनको ट्यूमर नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन पहले दूसरे ग्रुप में उन्होंने पहले थोड़ा सा इनिशिएटर वाले प्रोग्रेट्स दिए, लेकिन उसके बाद उनको प्रोमोटर भी दिए,
फौरन दे दिया तो भी ट्यूमर डेवलप हो गया। उन्होंने पहले इनिशिएटर्स दिया, उसके कुछ अरसे के बाद उन्हें प्रोमोटर्स दिए, तो फिर भी ट्यूमर्स डेवलप हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले प्रोमोटर दे दिया और बाद में इनिशिएटर दिया तो ट्यूमर नहीं बना। या अगर खाली उन्होंने प्रोमोटर दे दिया तो भी ट्यूमर नहीं बना। या उन्होंने क्या किया कि पहले इनिशिएटर दिया और उसके बाद प्रोमोटर को गैप दिया तो भी ट्यूमर। तो दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर ट्यूमर्स डेवलप हुए कि इनिशिएटर दिया था, लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी कि प्रोमोटर कॉन्टिन्यूअस था, देते गए देते गए देते गए। ऐसे नहीं हुआ कि दिया छोड़ा दिया छोड़ा दिया छोड़ा दिया छोड़ा, ऐसे नहीं। और ये था कि कुछ अरसे के बाद दिया या फौरन दिया, दोनों कंडीशंस में ट्यूमर्स हो गए। So this is the basis of chemical carcinogens. In chemical carcinogens, there is metabolic activation, there is binding to DNA, there is permanent DNA lesion, there is proliferation, there is pre-neoplastic clone formation, then there is malignant neoplastic. Agents and direct acting agents do not require metabolic conversion. They are weak carcinogens. ठीक है, they can be cancer chemotherapeutic drugs, जो कि वैसे basically तो use की जाती हैं to treat one kind of cancer, but they can develop another cancer. Then there are indirect acting agents. They cannot produce cancer directly. First they have to convert into active form, and then they become a strong carcinogens, and like polycyclic hydrocarbons. Then aflatoxin B1, it is produced by some strains of Aspergillus, and it is found in contaminatory mutation and hepatocellular carcinoma in Africa and Far East. Then radiation carcinogens. Radiation carcinogens are UVC, UVB, and UVA. You have to remember the nanogram of range of this how this range, like UVC 100 nanometers to 219 nanometers, UVB 290 nanometers to 320 nanometers, and UVA 320 nanometers to 400 nanometers. So minors of radioactive elements, they have Hiroshima and Nagasaki. They developed leukemias about 7 years, and they developed breast, colon, thyroid, and lung cancers. Then if we talk about microbial carcinogenesis, then human papilloma virus, it has low risk and high risk types. 611, they causes genital warts, and high risk types cause 16, 18, 31, and 33. They cause squamous cell carcinoma of cervix. Epstein-Barr virus, it causes Burkitt's lymphoma, gastric carcinoma, and Hodgkin's disease. Then Epstein-Barr virus basically acts through a latent membrane protein, which is LMP1 and EBNA2. Okay, so these are two proteins by which the EBV acts. Then hepatitis B infection, hepatitis C infection, that leads to hepatocellular carcinoma. So what happens that hepatitis B or C infection, they cause chronic inflammation, they cause hepatocyte cell death, they activate HBX gene, and then NF-kappa beta pathway receptors, which basically blocks apoptosis and then allows mutations to accumulate. Then H. pylori, it causes gastritis, gastric adenocarcinoma, and gastric lymphoma. Then how does this happen? एक तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, दूसरी ये कि ये कुछ प्रोटीन रिलीज करता है जो कि गैस्ट्रिक एपिथेलियम में पेनिट्रेट करती हैं और वो ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। वो कैग ए प्रोटीन है।
So there is, I told you that this is a precancerous conditions: gastric atrophy, intestinal metaplasia, dysplasia, and gastric carcinoma. Then H. pylori basically causes also T cell stimulation, B cell stimulation, and C cell stimulation. So H. pylori causes intestinal adenocarcinoma. It causes lymphoma. So what are the clinical aspects of neoplasia? कि ट्यूमर जब बढ़ेगा तो वो ग्रो करेगा, वो प्रेशर इफेक्ट डालेगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज paraneoplastic. The factors which are responsible for cachexia, tumor necrosis, interleukin 1 and IFCAM. So I'm giving you 5 minutes break, and then we will start again. Okay, and during this period, you can open up your books and read this paraneoplastic syndrome. एक पेशेंट है, उसको कैंसर हो गया है, ठीक है? जैसे उसको यूं समझ लो कि रिनल सेल कार्सिनोमा हुआ है, किडनी का कैंसर हुआ है, और कुछ अर्से के बाद उसको उसका एरिथ्रोपोइटिन जो है वो लेवल्स रेज हो गए। अब वो एरिथ्रोपोइटिन क्यों रेज हो रहे हैं? इसी तरह तो बेसिकली क्या होता है कि जी ट्यूमर्स जो हैं वो कुछ ऐसे फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं जो कि ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी के अंदर फर्दर इफेक्ट्स डालते हैं। वो ट्यूमर के अपने इफेक्ट की वजह से नहीं होता, यानी कि ट्यूमर ग्रो कर रहा है या उससे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उस फैक्टर के रिलीज होने की वजह से जो है वो इफेक्ट होता है। सो दे नॉट caused directly by the tumor cells, but they can be the first indicator of an undetected malignancy. कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर का पता नहीं होता, लेकिन वो जो फैक्टर रिलीज कर रहा होता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर जाती है, वो जल्दी एक्सप्रेस कर जाती है, वो एज ए सिम्टम के तौर पर प्रेजेंट करता है पेशेंट। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि अंडरलाइन कैंसर कहाँ पे। तो दो चीजें देखनी है, एक आपने ग्लैंड को इटसेल्फ देखना है, और फिर देखना है कि कोई लंग के अंदर कार्सिनोमा तो नहीं है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, because this small cell carcinoma of the lung produces ACTH or ACTH like substance,
ठीक है। तो इसी तरह स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग या ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, वो पैराथायरॉइड रिलेटेड प्रोटीन्स जो है वो रिलीज करें, तो दैट विल कॉज हाइपरकैल्सीमिया। तो अगर किसी पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो ये डिफरेंशिएट करना लाजमी है। अगर पॉलीसाइथीनिया हो रहा है किसी पेशेंट में, जैसे एग्जांपल दिया आपको रीनल सेल कार्सिनोमा में, तो उसे एरिथ्रोपोइटिन रिलीज की वजह से ज्यादा होगा। अगर हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हो रही है, यानी कि उसके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वो स्वेलअप कर रहे हैं और तो उनका साइज बड़ा हो रहा है, तो वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास की वजह से होगा। या कोई वीनस थ्रोम्बोसिस हो रही है तो सीए पैंक्रियास को चेक करना। दिस इज ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। This is just the repetition that tissue diagnosis of cervical cancers can be done by pap smears, by fine needle aspiration cytology, by core biopsy, by Axion biopsy, and then the tumor develops. Tumor grade, tumor stage. This is the molecular assessment of the tumor and tumor markers. We have done the tumor markers before, like prostatic specific antigen, and these are other tumor markers like alpha fetoprotein, HCC, CA, and CA colon, PSA, and CA prostate, CA125, and CA ovary, CA19-9, and CA breast 15-3, HCG in choliocarcinoma. And तो जब आपने रॉबिन्स खोलनी है तो परेशान नहीं होना। आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए मैं इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो फर्स्ट हाफ ऑफ न्यूप्लेजिया के अंदर आपने न्यूप्लेजिया की डेफिनेशन, उसके ट्यूमर्स के नाम, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के डिफरेंसेस, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्यूमर्स कैसे स्प्रेड करते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसका जो पूरा कैस्केड है, वो जो पिक्चर बनी हुई है कि ट्यूमर कैसे करते हैं, कैसे उसका। तो उसके बाद ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर जेनेटिक phenomena के how does this tumor develop, what is the role of p53, what are growth promoting genes, what are tumor suppressor genes, which ones are DNA repair genes, and which ones are DNA apoptotic genes. Then paraneoplastic syndromes, tumor markers, and so these are very important. And how do you diagnose a tumor? How do you diagnose? What are different modalities or ways of diagnosis of a cancer? So that is also important. Then radiation carcinogenesis, the role of initiators and promoters, that is also important. Then chemical carcinogens, different types of chemical radiations की जो ranges हैं वो important है, MCQs में आ जाती हैं। उसके बाद which are the viruses which can cause cancers, like hepatitis B, C virus, Epstein-Barr virus, and then HPV virus. It has different strains, 611, 16, 18, 31, 33. तो ये वॉट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा करते हैं। EBV जो है एप्स्टीन-बार वायरस है। फिर कौन सा बैक्टीरिया है जो कि करता है, जैसे H. pylori है वो करता है माल्टोमा, गैस्ट्रिक माल्टोमा करता है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा करता है। प्रीनियोप्लास्टिक कंडीशंस कौन सी हैं ट्यूमर्स की, जैसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, एट्रोफी करता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया करता है, डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा। स्मोकिंग की वजह से सोलर स्ट्रेटिफाइड कलमर सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो चेंज हो जाती है, स्क्वैमस एपिथेलियम में मेटाडेवलप हो सकता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसमें जो एसिड है वो रिफ्लक्स करता है ऊपर और वो मेटाप्लेजिया करता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया करता है, फिर एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। So you have to remember these different preneoplastic conditions as well. Okay, so this is a long chapter and all the topics are very important.
And I hope you have understood all of them. If you have any question, you can ask me directly on my WhatsApp number, or you can ask in a group. And if anyone has a question right now, he or she is free to ask, and because we have time, and we can discuss. कभी कभी दो सवाल भी आ जाते हैं इस चैप्टर में से, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा है और उसका क्या इंटरेस्ट है, किस चैप्टर की तरफ उसका ज्यादा रुझान है. सो न्यूप्लेजिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फर्स्ट हाफ जो मैंने पहले लेक्चर्स लिए उनमें भी सवाल आ जाते हैं, और ये जो लास्ट हाफ है जिसमें ट्यूमर मार्कर्स हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, वायरसेस हैं, इन सबसे भी सवाल आते हैं. तो दरमियान में एक चीज है कि जेनेटिक yes, medium Robbins is enough for covering the topic. मीडियम रॉबिन्स अच्छी है, मतलब ठीक है, लेकिन ये कि प्लीज अपनी जो बिग रॉबिन्स है उसको भी आप खोल के सामने रखा करें, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मीडियम रॉबिन्स में सिर्फ एक लाइन या दो लाइन में डिस्क्राइब किए हुए एंड दे आर एग्जाम क्वेश्चंस. सो बेसिकली मीडियम रॉबिन्स आप करें, फॉलो करें. बिग रॉबिन्स को एक दफा पहली दफा जस्ट पढ़े ना चैप्टर, तो बिग रॉबिन से कॉपी करके स्टिकिंग के ऊपर लिख के तो वो अपने मीडियम रॉबिन्स पे लगा ले. बट प्लीज डोंट फॉलो दी स्मॉल बुक्स जैसे जो कि पैथोमा एंड लाइक दैट, गोल्डजान और इस तरह की किताबें, बिकॉज देखो आप लोगों ने ऐसे नहीं है कि रट्टा मार के चीजें, अगर आप इम्तहान पास करने के लिए करना चाहते हो तो इट्स योर लक कि आप जो पढ़ के गए हो वही आ गया, ठीक है ना, और तो आप पास हो जाओगे. लेकिन आपको जो एक नॉलेज, एक कॉन्सेप्ट है ना, वो बिग रॉबिन्स या मीडियम रॉबिन्स से ही डेवलप होता है. और बिलीव मी, आप मीडियम रॉबिन्स अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे तो जाके पढ़नी ही पड़ेगी, मतलब जो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो, क्योंकि यही एक किताब है जो कि हर स्टेज पे हेल्पफुल होती है और यही आपने पढ़नी होती है. कोई भी एग्जाम कि आप इस स्टेज के ऊपर यू गेट यूज टू बिग बुक्स. छोटी किताबें पढ़ने वाले पास तो हो जाते हैं बट दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट. जो किताब आपको कॉन्सेप्ट देती है वो बड़ी किताब ही है. जाहिर आप 10 लाइनें पढ़ोगे तो उसमें से आपको 5 लाइनें याद रह जाएंगी ना, और अगर आप पढ़ोगे 3 लाइनें या 5 लाइनें तो उसमें से कितनी लाइनें आपको याद रहेंगी. और अगर वो एक लाइन के अंदर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है और उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो दैट विल जस्ट पासेस ऑन ओवर यू. हाउ वी ऑलवेज से कि बड़ी किताब पढ़ा करें. तो अगर आप लेक्चर्स अच्छे तरीके से, कॉलेज वाले सिलेबस इतनी जल्दी क्यों कवर करा रहे हैं, समझना मुश्किल होता है. यस यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपको पता है एग्जाम आप लोगों के प्रीपोन हुए में ना 1-1.5 महीना, तो इसकी वजह से इन कॉलेज वालों को भी मुश्किल हो रही है कि वो कोर्स कैसे खत्म कराएं, बिकॉज कोर्स तो खत्म कराना इम्पोर्टेंट है ना. तो बस ये लॉकडाउन की सारी वो है. आई डोंट नो प्रॉफ डिले होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है, तो इसलिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और इंशाल्लाह आपके साथ अल्लाह में अच्छा करेगा. ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आप निकाल, ज्यादातर आए में उनको पहले कर लें, और जो एक एक दफा आए में उनको भी पढ़ लें, क्योंकि वो भी रिपीट हो सकते हैं. ठीक है, तो पहले वो करें जो कि ज्यादा आए में. तो अगर आप 14 सवालों में से अगर 10 सवाल भी अच्छे कर लें तो यू कैन पास. ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस टाइम नहीं वेस्ट करें. भी आप लेक्चर्स को सुने, समझ नहीं आती दोबारा पूछिए. just half an hour before the time. ठीक है, half an hour before the time, but you have time ना.
यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो आधा घंटा किताब खोल के देख लो कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, सिर्फ यही देख लो किताब में कि ये टॉपिक्स कहाँ लिखे हुए, उनको एक मार्कर से निशान लगा लो कि ये आज हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिलीव मी, आपको जब दोबारा पढ़ोगे आपको सारी बातें मेरी याद आ जाएंगी जो मैंने जो, अगर आप बंद कर देते हो ना किताब को, मतलब जैसे मैंने लेक्चर सुना है अभी आपने, तो मतलब आप लेक्चर सुन के तो सो जाओ या छोड़ दो, ये किताब को ना देखो, तो बिलीव मी यू विल नेवर रिमेम्बर। जब जब आप एक दफा देख लेते हो ना, घर जाके किताब खोल के देख लेते हो, तो मेरी क्लास में कुछ लड़कियां होती थी जो कि लिखती नहीं थी लेक्चर्स होती थी, और घर जाके ना वो एक पेज पे मैं अक्सर देख रही होती थी, क्योंकि जब हम केई में थे तो आई वाज इन डॉर्मेट्री, और मेरे डॉम में 10 लड़कियां थी फर्स्ट ईयर के अंदर। इट वाज अ बिग डॉर्मेट्री, और उसमें 10 बेड लगे हुए थे हमारे, तो हमें इसलिए सबकी फिर आते पता होती है। तो वो एक लड़की बैठ के हर जितने लेक्चर्स हुए होते थे ना उनकी समरी लिख रही होती थी विदाउट ओपनिंग द बुक, कि जो उसने सुना होता था उसको बस एक पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेती थी कि मुझे आज मैं ये बिठाती हूँ ना कि आज क्या मुझे पता चलेगा, क्या मैं नया सुनूंगा। अच्छा, ये नई चीज ऐसे भी होता है नॉलेज में, आपका एवरी डे योर नॉलेज इज इंक्रीजिंग ना, तो दैट्स हाउ यू लर्न, एंड दैट इज अ वे टू लर्न एज वेल ना। तो और कुछ क्यूरोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आप कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप गूगल खोल लें, आजकल तो इतना आसान है, इतना अच्छा उसके अंदर लिखा होता है सब कुछ। तो हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, वी हैव टू गो टू लाइब्रेरी एंड ओपन अप डिफरेंट बुक्स टू फाइंड द रेफरेंसेस और सब कुछ। आजकल तो इतने अच्छे आर्टिकल्स और सब कुछ मिल जाता है, तो लाइफ इज टू इजी फॉर यू गाइस ना, सो डोंट वेस्ट इट। लाइफ एक दफा मिलती है इंसान को, जो एक वक्त आपकी जिंदगी में आता है, वो एक वक्त में ही आता है, उसके बाद वो गुजर जाता है, अब वो फेज नहीं आता। कई दफा दिल करता है मैं और तरीके से अपनी पढ़ाई को या अपनी जिंदगी को शुरू करूं, बट इट नहीं, ऐसे नहीं आता, ऐसे कभी हो भी नहीं सकता। अब जो मेरा टाइम गुजर गया वो गुजर गया, इसी तरह आप लोगों का भी गुजर गया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच एंड